हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग। आज स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे और इसके कुछ एस्पेक्ट्स से डील करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अगर हम शुरू करें तो कुछ कोटेशन से शुरू करती हूँ मैं। जैसे कि आपने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो आप कई कोटेशंस को देखते हो, जैसे एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज़ व्हाट a lighted match is to a train of gunpowder। आप इस तरीके की मैक्सिम्स को, इस तरीके के कोटेशंस को देखते हैं और इस पर क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, इस तरीके से आता है। या फिर इस तरीके से लिखा जाएगा, एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू बी एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी से। तो ये जो लाइन हमने बोली, every contract has to be an agreement but every agreement cannot be a contract, this is very much true in Indian Contract Act in a sense। जब आप एग्रीमेंट की बात करते हैं, जब आप ऑफर की बात करते हैं, जब आप एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम डील करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय ना ऑफर। ऑफर क्या होता है? अगर हम लिटरल सेंसेस में बोले, जैसे आप से फॉर एग्जांपल ए आस्क्ड बी आई विल सेल माय वॉच for rupees 2000, so this is an offer of selling a watch for rupees 2000 which A has made to B with the intention of making a legal relationship, creating a legal relationship, and with the intention that he could get the consent of B to the same. Now what is acceptance? Acceptance is when B on the same condition at the same time on the same points says that I am ready to buy a watch for rupees 2000. Now the illustration will stand as if A agreed to sell his watch to B for rupees 2000. B agrees to buy the watch of A for rupees 2000. दिस इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, तो आप सेक्शन 2H में जाके उसकी डेफिनेशन देखते हो। तो उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? ऑल एग्रीमेंट्स इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनफोर्सिएबल बाय लॉ? हाउ विल यू से दैट अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट is a contract or a mere agreement? Because now we have said, when we have started this video, I have already stated that every contract is an agreement but every agreement cannot be a contract. So this is very much true, because every contract which is enforceable by law, which will have a valid acceptance, it will be a valid contract following all the conditions of section 10. It will have the intention of creating a legal relationship between the parties. When there is an intention to create a legal relationship, then that is called a contract in the sense of a law. There are certain agreements which are like mere agreements. Like, say for example, A asked B, will you accompany me for a movie tonight? On this, B said yes. On B's promise, A bought 2 cinema hall tickets, and later on B did not turn up. This wasn't a contract. This was mere legal obligation which B had on A, that yes, if he said he will accompany A to a picture hall, so it was a mere moral obligation and moral obligation that B will turn up to A and will be watching a video, will be watching a film with A. So now here there was no intention of creating a legal contract. There was nothing of that sort which is like lawful policy, lawful object, lawful consideration, lawful acceptance. There was nothing like that. It was just a mere agreement. तो इसीलिए हम कहते हैं कि सारे एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ज़रूर होते हैं, इसीलिए हम ये बात कहते हैं।
क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिनके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, वो सिर्फ एक मॉरल सेंस में बनते हैं. So I hope I am clear with what exactly this doctrine means. Every contract has to be an agreement, and every agreement cannot be a contract. Now coming back to the conditions, जब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, जब आप बोलते हो सेक्शन 2H के अंदर ऑल एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका क्या मतलब हुआ? जो सेक्शन 10 है उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है. उसकी कंडीशंस क्या है? सबसे पहले कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट था. कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में बता रखा है कि वो मेजर है, साउंड माइंड का है, और उसको ये समझ में आ रहा है कि वो नेचर ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शन 12 कि वो साउंड माइंड है. और कुछ सर्कमस्टांसेस उसमें ऐसे दे रखे हैं जिसमें ये होता है कि अगर मान लो वो पर्टिकुलर पर्सन साउंड माइंड का नहीं है, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए साउंड माइंड का है, कुछ और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इनसेन है, तो जितने टाइम पॉइंट के लिए वो साउंड माइंड का है वो उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और जितने टाइम पीरियड के लिए वो इनसेन है उसमें उसका कोई भी किया हुआ इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. उसके अलावा जब आप और कंडीशंस देखते हैं तो उसमें बोलता है लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल कॉटन 100 yards of cotton cloth. This is a valid contract. But now, for instance, A contracts with B to sell afim. That is not a valid contract, because doing trading of afim is not legally right, and the law does not provide for doing so. So now this will not be a valid contract. So जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होते हैं, कुछ वॉइड होते हैं, कुछ वॉइडेबल होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है. अब ये 3 तरीके के होते हैं. वैलिड की तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी. जब आप वॉइड और वॉइडेबल के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि कुछ जो है वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, कुछ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. तो वॉइड का मतलब क्या है? से फॉर एग्जांपल वॉइड का मतलब है कि शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था कुछ भी. से फॉर एग्जांपल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ माइनर. जब आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है. ऑन द वेरी फेस ऑफ इट द माइनर इज नॉट ऑफ मेच्योरिटी, he is not in a condition to understand the nature of the contract which he is entering into, because the law raises the presumption कि जो एक चाइल्ड है he cannot be presumed to be bound by such conditions जो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं, क्योंकि उसको उतना सेंस ही नहीं, उसको उतनी समझ ही नहीं है कि वो जिस उसमें जा रहा है तो वो कर सकता है. इसका लीडिंग जजमेंट मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदास है. आई विल बी डीलिंग विद द स्पेसिफिक टॉपिक इन डिटेल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द जिस्ट ऑफ इट राइट नाउ इन द करंट वीडियो. सो आई एम जस्ट टचिंग अपॉन द पॉइंट्स. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स कि कुछ कंडीशंस ऐसी थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, से फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर ₹2000 इफ बी will give him 500 of cloth yards, cotton cloth yards by say for example 1st of January 1996. तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, एक कंडीशन आ गई कि 1st of January 1996 तक उसको 500 यार्ड्स ऑफ कॉटन देनी है, और अगर बी दे देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो जाएगा. और अगर बी इस कंडीशन को ब्रीच कर देता है तो नाउ ए हैज़ एन ऑप्शन आइदर टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और on the non fulfillment of the condition he can also do away with the contract, and the contract can be turned as voidable. Say for example there was some mistake of fact, या फिर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन की गई थी, कोई फ्रॉड किया गया था जिसके बेसिस पे आके बी ने ए को कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट दिया था,
बट लेटर ऑन बी को ये पता लगा कि दी वट एवर दी सर्कमस्टांसेस वर, it was not in existence, or it was just to merely show to B to take the condition of B. तो उस कंडीशन में बी के पास ये ऑप्शन है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर सकता है, या तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइड कर देगा या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह सारे कंडीशंस को फुलफिल करके और एक्सेप्ट कर लेगा और फुल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल। तो वॉइडेबल में दो कंडीशंस होती हैं, या तो हाँ होगी या ना होगी, या तो वैलिड हो, या तो आप उस जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसको डू अवे कर दो, देखा देखी अंदर